99. गुड, दैट्स नाइस। सिर्फ मैथ्स बताना है। 1175। बहुत घूमी हो ना तुम, पूरे दुनिया का चक्कर लगाया है। मतलब याद नहीं का मतलब 50 से नीचे होता है। 11 का पूछ रहा हूँ मैं। 87, ठीक है। कोई बात नहीं, 20 का प्रैक्टिकल भी तो होता है, तो 100 से ही आता है टोटल। ऑल राइट, माई नेम इज संजय भटनागर। I'm IIT B Mechanical, BTech Mechanical from IIT Roorkee, and I teach physics and maths. I'll be teaching you maths for JEE, right? अब थोड़ा JEE की बात कर लेते हैं. Your target must be SP Delhi or Bhopal or Vijayawada, right? So these are the topmost colleges for as far as JEE paper 2 goes. And then you have some NITs also, which were earlier called RECs, Regional Engineering Colleges. Now this paper for JEE paper 2 has 400 marks, out of which aptitude is 200, maths 100 marks, and drawing is there, which is again 100 marks. You'll get your entry into SP Delhi if your marks are around 290 plus. 290 plus का मतलब होता है the marks are, your percentile would be 99.96 or above. So if your percentile is 99.96 plus, then only you'll be getting into SP Delhi. It changes every year, but this will ensure that your rank is within 200. Top 200 people get into SP Delhi. There are only 50 seats, 50. Aptitude, you might score, 180 plus, 185 also, if you work hard for the entire year. This is very subjective, depends, but 50 plus इसमें भी आ जाएंगे. So 180 plus 50, around 230 can score in maths and drawing. The rest will come from maths. So this would be the deciding factor. And let me tell you, maths would be tough as JEE paper 1 is. Okay? And of late, for the last 2 years, they have rationalized the syllabus. They're saying, matlab jo whatever you have studied in 11th and 12th, the entire syllabus would be there in JEE. And as you know, it is +4 -1. And generally, 25 क्वेश्चंस में से एवरेज जो स्टूडेंट करके आते हैं वो है 4 to 5 क्वेश्चन मैथ्स. दैट इज एवरेज. People who get many people get negative marks also. Some lucky ones, they get 0 marks as well. 0 mark का मतलब होता है उनकी परसेंटाइल 50-60 के आसपास आ जाती है. So each mark in maths will boost your rank. One question here and there, you will be from SP Delhi to Bhopal, Bhopal to Vijayawada, Vijayawada के बाद तो कबाड़ा है सारा, NITs हैं. So each mark in maths will be like, rank booster for you. Syllabus पूरा आएगा 11th 12th का. So इसको हम बैलेंस आउट कैसे करेंगे? आई एम श्योर 11th में उन्होंने काफ़ी मेहनत की होगी, but I'll assume that you have not studied at all in 11th class. Assuming that you have not done anything in 11th, we'll start from the basics. Few topics I'll take from 11th, and since स्कूल में तुम्हारा एग्जाम होगा, यूनिट टेस्ट वगैरह चल रहे होंगे, I'll take some topics from 11th also and 12th also. एक बार वेटेज देख लेते हैं कि किस चैप्टर से जनरली कितने क्वेश्चंस आते हैं. कॉम्प्लेक्स नंबर्स, what you have studied in 11th class was much less. हमें एक्स्ट्रा काफी कुछ करना पड़ेगा इसमें. There will be one question from complex number. लिखते जाओ. कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन आएगा. एक क्वेश्चन, हाँ, एक क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट करो मत करना, ठीक है? 4 मार्क्स होते हैं.
लोगों के 4 मार्क भी नहीं आते मैथ्स में, बिकॉज द प्रॉब्लम इज टाइम, 3 घंटे का पेपर होता है, एंड यू गेट मैथ्स एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग कंबाइंड। ऐसा नहीं कि 1 घंटे का तुमने एप्टीट्यूड कर लिया, आधे घंटे में फिर मैथ्स मिलेगा। हाँ, अच्छा स्कोर तो 100 हो जाएगा, पर एनीथिंग अबव 40 इज ए गुड स्कोर। एनीथिंग नियरिंग 40, जैसे कि सपोज 10th में तुम्हारे 99 थे, 98 भी थे, फिर भी लोग बोले अरे 2 मार्क कहाँ रह गए। बट यहाँ पे अगर तुम 33 से भी लिया तो आई बी वेरी हैप्पी। जस्ट पास इन मैथ्स फॉर मी विल बी ए गुड स्कोर, ठीक है। बट एनीथिंग अबव इट विल बी लाइक एनीथिंग, बिकॉज लेवल ही इतने टफ आता है। तो अभी से तुम्हें मेहनत करनी है। कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन आएगा, देन सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज से दिल बी 1 to 2 क्वेश्चंस। हाँ, मिक्स आता है। क्वाड्रेटिक, अगेन 1 to 2 क्वेश्चंस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट भी आएगा, कर्व भी आएगा। हम्म। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इक्वेशन 11 में हार्डली वाज देयर, बट विल बी स्टडिंग डिटेल, काफी डिटेल में करना पड़ेगा हमें, फिर दोबारा भी करेंगे, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। व्हेन आई से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका मतलब हुआ स्ट्रेट लाइन एंड कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन में सर्कल हो गया, पैराबोला, सही बोला। दिस इज, इस बार घूमने फिरने मत जाना, घर यहीं आना क्लास में, एक भी क्लास मिस मत करना। एक क्लास मिस करने का मतलब हुआ मैथ्स की, इफ यू मिस 1 क्लास यू रैंक शिट बाय 100। लिख लेना ये, ठीक है। सो फ्रॉम हियर विल बी गेटिंग 3 to 4 क्वेश्चंस। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी चैप्टर का है। 11 का जो 2D था, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर अस। देन योर फेवरेट PNC, 1 क्वेश्चन। रैंकिंग वाले क्वेश्चन जल्दी आते हैं। देन बायनोमियल, अगेन 1 क्वेश्चन, जीरो भी आ सकता है। कई बार बायनोमियल से क्वेश्चन आता भी नहीं है, बट दिल बी 1 क्वेश्चन फ्रॉम बायनोमियल। स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स से जनरली क्वेश्चंस इजी आते हैं, बट द प्रॉब्लम इज देयर लेंथी, लॉट ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्व्ड। बट नहीं, जे में ऐसा कुछ नहीं है, तुम 1 घंटा लगा सकते हो क्वेश्चन में। अगर तुमने गलत क्वेश्चन पकड़ लिया मैथ्स में, जो तुम्हें नहीं आता है, बट यू ईगो प्रॉब्लम होगी, मेरे को उसको सॉल्व करना ही है, तो हो सकता है 1 घंटा भी लग जाए जे में उसी क्वेश्चन में। सो विल आई डिस्कस द स्ट्रेटजी ऑल्सो कि मैथ्स को हम कैसे करेंगे। पहले एक बार ये देख लो। कॉम्प्लेक्स नंबर 1, सीक्वेंस सीरीज 1 to 2 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक 1 to 2, coordinate geometry is the most important, 3 to 4 questions. PNC 1, binomial 1, statistics 1 question. Then trigo. Trigo 12th में भी है. If I include inverse trigo also, there'll be 1 question only. और कुछ बचा 11th का? हम्म। वो 12th में भी है, तो उसको इकट्ठा कर लेंगे। सेट्स, रिलेशन, फंक्शन, इसको मैं एक एक चैप्टर मान के चल रहा हूँ। सम पार्ट ऑफ फंक्शन देयर इज इन 12th क्लास ऑल्सो, 11th भी है, 12th में भी था। सो सेट रिलेशन फंक्शन से 1 to 2 क्वेश्चंस आएंगे। देन लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी प्लस डिफरेंशिएशन, पूरा लिख देता हूँ। डिफरेंशिएशन एंड AOD,
एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसको शॉर्ट में एओडी बोलते हैं. दिस इज कंप्लीटली डिफरेंशियल कैलकुलस. ये 12th के टॉपिक्स है. 2 to 3 क्वेश्चंस. डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, एओडी. तो डिपेंड करता है अपना अपना फोर्टे, तुम कितना पढ़ाई करते हो. सारा इजी अगर पढ़ते हो, अगर पढ़े रहते हो 11th की तरह, तो सब कुछ टफ है. डिपेंड करता है पढ़ोगे या पढ़े रहोगे. सो लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशिएशन एंड एओडी, दैट इज डिफरेंशियल कैलकुलस. 2 to 3 क्वेश्चंस. उसके बाद मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स, ये 12th का टॉपिक है. 1 क्वेश्चन फ्रॉम हियर. डिटर्मिनेंट. वेक्टर 3D. वेक्टर तो हमने थोड़ा बहुत फिजिक्स में पढ़ा था, बट 12th में काफी डिटेल में वेक्टर्स एंड 3D. यस. 3D ज्योमेट्री. वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री. यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस आ सकते हैं. देन वी हैव इंटीग्रल कैलकुलस, विच यू हैव नॉट स्टडीड एट ऑल. थोड़ा बहुत किया था फिजिक्स में, बट 11th 12th में बहुत डिटेल में है इंटीग्रल कैलकुलस. दैट इज इंटीग्रेशन which include different indefinite also, definite also, differential equations, ये भी इंटीग्रेशन ही है. differential equation. And then you have AOI. What is AOI? Application of integrals. Again, this is a huge chapter. 2 to 3 questions. Then probability was there in 11th also and 12th also. There'll be 1 question from here. और कुछ बचा है जरा देखो. कुछ याद है 11th का जो मैंने नहीं लिखा है? Anyone? हम्म. उससे हार्डली एनी क्वेश्चन. वो ट्रिगो में आ गया. दैट्स 12th का पार्ट, वो ट्रिगो का पार्ट हो गया. 1 question फ्रॉम देयर. उससे क्वेश्चन नहीं आता एंट्रेंस में. एलपीपी से क्वेश्चन नहीं आएगा. एलपी तो वैसे बहुत इजी है 12th में जो है, वो तुम्हें पास करने के लिए होता है. सो दिस इज द मोरलेस द डिविजन ऑफ क्वेश्चंस एंड मार्क्स, जो कि पिछले 15-20 साल से आ रहे हैं. 2012 में जेई का नाम नहीं था. इट वाज AIEEE, ऑल इंडिया इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन. उसमें 3 पेपर हुआ करते थे: मैथ्स, एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग. मैथ्स यूज टू बी कॉमन फॉर बीटेक पीपल एंड बीआर्क पीपल. अब इसका नाम जेई हो गया है. अब मैं इसमें बताता हूँ, हमें तो सारा बहुत डिटेल में करना है. वो सारे चैप्टर्स जो कि डुएबल हैं, मतलब अगर तुम्हारी पढ़ाई बहुत ज़्यादा अच्छी भी नहीं है, स्टिल यू कैन आंसर दोज क्वेश्चंस, जो कि श्योर श्योर यू कैन आंसर विदाउट मच डिफिकल्टी. वन इज वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री, जो 12th का पार्ट है. इससे इजी क्वेश्चन आएंगे. दूसरा हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी डुएबल होगा. देन स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स ये भी डुएबल है. एंड देन दीज 3 चैप्टर्स. आई वुड नॉट एडवाइज यू टू डू सेलेक्टिव स्टडी कि हम ये पढ़ के चले जाएं, बट जनरली क्या होता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट अटेम्प्ट उस समय प्री बोर्ड भी हो रहा होता है, एंड काइंड ऑफ प्रिपरेशन भी कम होती है. तो देन सम इफ यू वांट टू डू सेलेक्टिव स्टडी, ये कर सकते हो. तो इफ यू add this with this, I think there'll be around 12 to 15 questions, है ना. अब कैसे स्ट्रेटजाइज करोगे एग्जामिनेशन? सबसे पहले तुम लोग एप्टीट्यूड अटेम्प्ट करते हो एंट्रेंस में.
जो कि 30 to 40 मिनट्स में हो जाता है। द स्ट्रेटजी, किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वी हैव टू हैव ए स्ट्रेटजी। द बेस्ट इज, सबसे पहले 30 to 40 मिनट्स में तुम्हारा 50% ऑफ द बैटल इज वन। क्योंकि एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का था? 200 का। तो 40 मिनट में या 30 मिनट में एप्टीट्यूड खत्म हो जाता है, प्रोवाइडेड यू हैव वर्कड हार्ड ओवर द एंटायर ईयर। एंड इफ यू वर्कड हार्डली, तो फिर तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा। तो आउट ऑफ 200, पहले क्या हुआ करता था, जीके के क्वेश्चन बहुत इजी आते थे इसमें। तो यू नो मेनी पीपल यूज टू स्कोर 200 on 200। बट नाउ नाटा की बात अभी नहीं करते, जे की बात कर रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है कि कुछ सम क्वेश्चंस ऑफ जीके आर रियली रियली टफ। स्टिल पीपल आर स्कोरिंग बिटवीन 180 to 185 टाइप्स। इस रेंज में हमारे मार्क्स आ सकते हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वी हैव नोटिस दैट ड्राइंग बड़ा सब्जेक्टिव है। कुछ बच्चों की ड्राइंग बहुत अच्छी थी, पर उनके मार्क्स बहुत कम आए। कुछ लोगों की बिल्कुल बेकार थी, गधा बनाया तो हाथी बन गया, इस टाइप के, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए। So it's वेरी सब्जेक्टिव। बट स्टिल, सिंस ऑल ऑफ यू आर गोइंग फॉर आर्किटेक्चर, मुझे मालूम है तुम लोग इतनी इस रेंज में मार्क्स ले आओगे, 40 to 60 टाइप्स। देयर विल बी 2 क्वेश्चंस, और उन 2 क्वेश्चंस को तुम इकट्ठा, मतलब आधा आधा पहले करोगे, उसके बाद थोड़ा और डिटेल कर दोगे। एंड टाइम 3 घंटे है हमारे पास। नहीं नहीं, अभी देखो ना, हमने 30 से 40 मिनट में ये कर लिया। अब इसके बाद हम ड्राइंग नहीं करेंगे। एप्टीट्यूड के बाद हमें ड्राइंग नहीं करनी है, अनटिल अनलेस यू आर रियली रियली बैड इन मैथ्स। ठीक है? तो अगर तुम्हारा मैथ्स बिल्कुल ही डिब्बा गोल है, बिल्कुल गड्ढे हो, देन यू डोंट डू मैथ्स। वी हैव सम स्टूडेंट, उनको मैथ्स बिल्कुल नहीं आता समझ में, व्हाट दे डू, दे वेरी गुड इन ड्राइंग। तो होता है क्या, दे स्पेंड टाइम इन दिस, देन दे स्पेंड टाइम ऑन ड्राइंग, मैथ्स को गुड बाय, टाटा। तो क्या होता है, देयर मार्क्स अराउंड 250 to 60 to 70 के रेंज में उनके मार्क्स आ जाते हैं। तो इस पे भोपाल मिल जाएगा, भोपाल की जलेबी खा सकते हो। हाँ, यस। तुम्हें घर से दूर जाना है ना, पास में रहना है, तो तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है? तो अब क्या होगा, सीक्वेंस देखो क्या है। एप्टीट्यूड, उसके बाद तुम पहले मैथ्स करोगे। मैथ्स को हमें मिनिमम 90 मिनट्स देने हैं। मिनिमम 90 मिनट्स मैथ्स को देने हैं, बिकॉज मैथ्स के क्वेश्चंस विल नॉट बी टफ, दे विल बी लेंथी। सम क्वेश्चन वुड गो ओवरहेड, HOT, ओवरहेड ट्रांसमिशन होगा, OHT, तुम्हें पता भी नहीं लग पाएगा कौन से टॉपिक का है। 90 मिनट्स क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज हर क्वेश्चन लेंथी होगा। फर्स्ट 5 मिनट्स आई वुड से सजेस्ट दैट यू जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस, सी कौन से डुएबल क्वेश्चन है, डिसाइड 15-20 क्वेश्चन जो तुम कर सकते हो, उन्हीं पे टाइम स्पेंड करना है। ऐसा ना हो कि पहला ही क्वेश्चन तुमने किया और तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, उसमें तुम टाइम स्पेंड करते जा रहे हो 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, एंड सारा टाइम लग गया और हाथ पांव हिलने लगे, अरे टाइम तो निकल गया, अब क्या करें। तो उसका स्ट्रेटजी ये होता है कि 90 मिनट्स कम से कम मैथ्स को देना है, और बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होके। ठीक है? इमेजिन कि ईरान पे बॉम्ब गिर चुका है, न्यूक्लियर, पाकिस्तान पे गिर चुका है, बिल्कुल फ्री माइंड होके अपने 90 मिनट्स मैथ्स को देने ही देने हैं। और जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, दे आर कॉन्फिडेंट, दे शुड गिव मोर टाइम टू मैथ्स। 30 मिनट यहाँ पे हो गए, 90 मिनट्स यहाँ पे हो गए, कितने टाइम हो गया? 2 घंटे हो गए। 1 घंटा बाद में तुम ड्राइंग कर सकते हो फ्री होके। हाँ, वो हम बाद में बात करेंगे, वो भी करेंगे, वो एक्स्ट्रा टाइम है, वहीं से हम चुराएंगे एक्स्ट्रा टाइम। मिनिमम 90 क्यों लिखा है मैंने? जो 30 मिनट वहां से मिलेंगे एप्टीट्यूड उस वाले से, प्लानिंग वाले से, वहां से 30 मिनट्स ले लेंगे। 10 मिनट तुम यहाँ पे ले लो, 20 मिनट यहाँ पे ले लो। बिकॉज मैथ्स के क्वेश्चन लेंथी होंगे, बिकॉज MCQ एंट्रेंस में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के मार्क्स नहीं है कि ये भी कर लिया वो भी कर लिया, 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, आंसर किसी का भी नहीं आया। 10 क्वेश्चन करो, उनको सही करो, दैट इज द स्ट्रेटजी। तो रादर देन अटेम्प्टिंग नंबर ऑफ क्वेश्चंस, हमारा गोल होगा, हमारा टारगेट होगा कि हम मिनिमम जितने भी डुएबल क्वेश्चन को सही करके आए, तभी तो मार्क्स मिलेंगे। कंप्यूटर के थोड़ी पता लगेगा तुमने ये भी अटेम्प्ट किया था, वो भी 90% कर लिया था, वहां आंसर आने वाला था, उससे कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। AMD याद कर लेना, इसको छाप लेना, एप्टीट्यूड, मैथ्स एंड ड्राइंग।
इस स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो तुम्हारा बहुत अच्छा स्कोर आएगा। अगर तुम ड्राइंग में बहुत धुरंधर हो, मैथ बिल्कुल नहीं आता, तो एडी कर लो सिर्फ। बट आई वुड सजेस्ट AMD इज द करेक्ट सीक्वेंस। 25, उसमें से 20 क्वेश्चंस होंगे MCQ, और 5 क्वेश्चंस होंगे जिनके न्यूमेरिकल आंसर होते हैं। ठीक है, इंटीजर टाइप क्वेश्चंस होते हैं ये, नंबर इसमें फिल करना होता है। इसका तो बेस्ट पार्ट है, 4 आंसर तुम्हारे सामने है, उसमें से एक ही सही है। विजयवाड़ा, हाँ। नहीं, आसपास का भी देख के कर सकती हो, विदा वर्किंग से भी। पहले जाओगे एंट्रेंस में तो पूछ लेना आसपास वाले लोगों का, क्या क्या 10th में कितने परसेंटेज मार्क्स, जैसे मैंने पूछा ना, तो पूछ लेना कि अगर कोई बोलते मेरे 100 मार्क्स है मैथ्स में, तो ये इसके हम कॉपी कर सकते, लेकिन जोक्स अपार्ट, इतना टाइम नहीं मिलता कि तुम आसपास भी देख पाओगे। नहीं, ऑर्डर डिफरेंट नहीं होता, बट इतना टाइम ही नहीं होता वहां पे। 3 घंटे तुम्हें लगेंगे कि अरे, माइक्रो सेकंड मिली सेकंड की तुम्हें वैल्यू वहीं पे जाके पता लगेगी। जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा है ना, माइक्रो, पिको, नैनो, वो टाइम की वैल्यू वहां पता लगेगी। ये टाइम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं एंड में, तुम्हें पास टाइम ही नहीं बचता, तुम मार्क करने जाओगे, पता लगाओ तो सिस्टम बंद हो गया। ऐसा भी होता है। तो हर साल ऐसा ही होता है, डोंट वरी, तुम लोगों में से बहुत लोगों के बहुत अच्छे से मार्क्स आने वाले हैं, विल गो टू गुड कॉलेजेस। बट दिस इज द स्टोरी। ठीक है, ये हम बार बार बातें करते रहेंगे कैसे करना है, और सीक्वेंस भी मैं इसी में पढ़ाऊंगा। ये सीक्वेंस रहेगा। अभी तो तुम्हारे स्कूल में क्या मैथ्स में क्या चल रहा होगा, मैट्रिक्स। वो तो, हाँ। अच्छा, टफ वाला पहले कर लिया। ट्रिको, इनवर्स ट्रिको चल रहा होगा। तो देन उसके बाद आई जंप टू दिस। ये फिनिश करने का आई जंप टू दिस, 12th का पार्ट ले लूंगा, आई फिनिश इंटायर लिमिट्स डिफरेंशियली, टफ है थोड़ा सा, ये पार्ट खत्म करा दूंगा ताकि यू फील कॉन्फिडेंट 12th सिलेबस ऑल्सो। देन आई कम बैक हियर। फिर तुम्हारा फर्स्ट सेम आने वाला होगा, कुछ लोगों का इंटीग्रेशन पूरा खत्म हो जाएगा। इंटीग्रेशन बिल्कुल ओवर ट्रांसमिशन होने वाला है, जब तक हम क्लास में यहाँ पे नहीं करेंगे इंटीग्रेशन में मजा नहीं आएगा, यू वोंट बी कंफर्टेबल। तो then I'll finish one chapter from integration. So that way, I'll shuffle between 11th and 12th part. कॉन्सेप्ट करेंगे, फिर उसके MCQ करेंगे, पास्ट ईयर्स के पेपर्स करेंगे, JEE के 1 के भी और 2 के भी, IT एडवांस के क्वेश्चन भी हम करेंगे। तो बहुत सारा, बहुत डिटेल में हम करने वाले हैं। लेकिन तुम्हें उसको रिवाइज करना होगा टाइम टू टाइम। क्लास मिस मत करना, 1 क्लास मिस, आई टोल्ड यू 100 मार्क्स पीछे करते जाना। अभी तुम अपनी रैंक ले लो 1, एक क्लास मिस मतलब 101, 2 क्लास मिस की 201, शिफ्ट करते जाना, 200 में तुम्हारा स्पीड डेली खत्म हो जाता है। सो डोंट मिस क्लासेस। अगर मिस होती है तो मैंने बताया था, सारी क्लासेस रिकॉर्डेड होंगी यूट्यूब चैनल पे। नाइस, क्या था, NICS इंस्टीट्यूट, यहाँ पे जाके तुम सारी क्लासेस देख सकते हो जो भी यहाँ पे होंगी। नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट, दे रिकॉर्डेड देयर। पिछले साल की भी सारी क्लासेस वहाँ पे हैं, अगर तुम बहुत एक्स्ट्रा करना चाह रहे हो तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो। अब ये तो बेसिक मैक्रो स्टडीज वो थी हमारी। कई बार क्या होता है कि देयर 4 ऑप्शन, तुमने 10 मिनट एक क्वेश्चन में मैथ्स के लगा दिए, फिर भी आंसर नहीं आ रहा है, बट यू नो फॉर श्योर दैट दिस ऑप्शन इज कंप्लीटली इनकरेक्ट, और ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, मतलब आउट ऑफ 4 ऑप्शंस यू हैव, you are sure that these 2 options are not correct at all, then I says I call it chance पे डांस। ठीक है, देन उस क्वेश्चन को तुम्हें अटेम्प्ट करना ही करना है, अदरवाइज क्या होगा, तुम्हारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बहुत कम रह जाएंगे। मान लो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए तो, वैसे आई कंडक्ट लॉट ऑफ मॉक टेस्ट ताकि तुम्हारा पहले से ही तुम्हें पता लग जाए कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अगर 4 में से 2 ऑप्शन तुमने डिसाइड कर लिए, देन ओनली यूल टेक तुक्का। ठीक है, फिर उसके बाद बाबा रामदेव का नाम लेके एक ऑप्शन तुम्हें आंसर करना है। क्यों, मान लो तुमने ऐसे 6 क्वेश्चन किए जिसमें 2 ऑप्शन रूल आउट कर दिए थे, तो अब अगर सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे, इसका मतलब तुम्हारे 3 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 3 गलत होंगे। वो बात अलग है, 6 के 6 गलत जाए, किस्मत ही अगर बेकार हो बट ऐसा नहीं होगा। सो बी पॉजिटिव। 3 इंटू 4 +12 हो गया, 3 इंटू -1 -3, 9 मार्क्स। 9 मार्क्स तो मैथ्स में लोगों के नहीं आते, तो 9 का मतलब है योर रैंक है शिफ्टेड बाई 1500। सीधा NIT से तुम SP दिल्ली आ गए। माइनस नहीं होगा, बी पॉजिटिव ठीक है। और हाँ, अरे विजयवाड़ा को छोड़ो, SP दिल्ली का टारगेट करो।
व्हेन यू थिंक अबाउट एसपी दिल्ली, तब जब जाके वहां पे जाके लैंड करोगे। सिर्फ 290 प्लस, ये हमारा टारगेट है, ठीक है। मैथ्स में मेरा था 33 प्लस। जस्ट पास इन मैथ्स, एंड एनीथिंग अबव दैट विल बी एडेड एडवांटेज, रैंक वुड बूस्ट अप। और हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर तुम अभी मैथ्स में बिल्कुल जीरो भी हो ना, तो डोंट वरी, धीरे धीरे हम क्या करेंगे इसमें, वन ऐड कर देंगे, फिर और टू ऐड कर देंगे, लाइक दैट। बट यू हैव टू वर्क हार्ड। वर्किंग हार्डली विल नॉट हेल्प, ठीक है। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने पढ़े रहने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन और है तुम्हारा? ठीक है। हर क्लास शार्प उसी टाइम पे शुरू हो जाएगी। तुम ब्रेक में नीचे जाओगे तो मेरी क्लास शुरू हो जाएगी, बिकॉज ऑनलाइन के स्टूडेंट बिल्कुल टाइम पे आ जाते हैं। तो ये मत सोचना नीचे जाके तुम पिज्जा बर्गर खा रहे हो और आधे 10 मिनट बाद आ रहे हो, ठीक है। तो बी इन द क्लास। लेट्स स्टार्ट विद कॉम्प्लेक्स। पहले बेसिक्स कर लेंगे, फिर उसके बाद विल डू लॉट ऑफ एमसीक्यूज, ठीक है। एंड वेर एवर शॉर्टकट्स आर देयर विल अप्लाई शॉर्टकट्स एज वेल। काफी लोगों को काफी कुछ आता भी होगा, फिर भी आई बी टचिंग ईच एंड एवरीथिंग। इमेजिनरी नंबर, क्या होता है इमेजिनरी नंबर? हाँ लिखो। अ नंबर, a number a number whose square is a negative number is called imaginary number. A number whose square is a negative number is called imaginary number. दूसरी बात, तुम्हारे पर्सनल डाउट मैं क्लास में नहीं ले पाऊंगा, यू कैन व्हाट्सएप टू मी योर क्वेश्चंस, आई आंसर। लेकिन वाइल इन द क्लास अगर कुछ समझ में नहीं आया, यू कैन आस्क मी 1000 टाइम्स, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। Imaginary number. So number whose square is a negative number is called imaginary number. For example, root of -2, root of -3, root of -9, root of -1. All these are imaginary numbers because अगर हम इनको स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर आएगा। सो नंबर whose square is a negative number is called an imaginary number. ये सारे के सारे imaginary number है। And the basic imaginary number is root of -1। जिस तरह तुम्हारे नाम है, इसका भी एक नाम है, आयोटा। आई मत बोलना, नाराज हो जाएगा ये। कॉल इट आयोटा। सो आयोटा इज बेसिक इमेजिनरी नंबर विच इज रूट ऑफ -1। अगर दोनों साइड को स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, -1। तो इवन दो आयोटा इज इमेजिनरी नंबर, आयोटा स्क्वायर इज अ रियल नंबर, राइट। इस इक्वेशन दोनों साइड को आयोटा से मल्टीप्लाई करो, माइनस आयोटा हो जाएगा। फिर दोबारा इसको स्क्वायर कर दो, तो आयोटा 4 is 1। दीज आर द 4 बेसिक रिजल्ट जो हमें पता होने चाहिए। आयोटा इज रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा gives माइनस आयोटा, आयोटा 4 is 1। लेकिन व्हाट इफ यू हैव हायर पावर ऑफ आयोटा, फिर क्या करेंगे? यस, अगर आयोटा 4 1 है, तो आयोटा 8 कितना होगा, वो भी 1 हो जाएगा। आयोटा 12 भी 1 हो जाएगा। इन जनरल आयोटा की पावर विच इज मल्टीपल ऑफ 4 विल बी ऑलवेज 1। इफ यू हैव पावर ऑफ आयोटा which is multiple of 4, like iota 100, iota 1000, iota 2000, ये सारे के सारे 1 होंगे। लेकिन what if you have 101? तो you can write it iota 4n into iota। iota 4n तो 1 था, that is iota 4n plus 1 will be iota। जैसे कि मान लो मेरे को iota 29 सिंप्लीफाई करना है, तो iota 29 इज iota 28 plus 1।
28 तो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, 1 हो जाएगा, तो आयोटा आ गया आंसर। ठीक है, प्रिशा लिखोगे नहीं तुमने कहा था मैं पढ़ने लगी हूँ अब। आयोटा 4n+2 विल बी आयोटा 4n इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा 4n+2, ये 1 हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर इज -1। सो इफ यू हैव आयोटा की पावर 4n+2, it will be -1. And finally, iota to the power 4n+3 कितना होना चाहिए? Iota cube, which is minus iota. तो ये 8 बेसिक रिजल्ट्स आयोटा के हमें याद होने चाहिए। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। There's no hurry, take your own time and simplify. हम्म। हम्म। ये जो है ना, ये नेक्स्ट टाइम लेके मत आना बच्चों की। एलकेजी में बच्चे पढ़ते हैं, वो ये छोटी सी कॉपी लेके आते हैं। नोट नहीं नहीं, मोटी नोटबुक लेके आना अगली बार, ठीक है? वैसे वैसी वाली, ऐसी वाली, ठीक है? अगर ये अगली बार आई तो मैं इसको रख लूंगा अपने पास। हाँ। योशा, पहले का क्या आंसर आ रहा है? फर्स्ट का आंसर कर लिया तुमने? ये- नो सर, कर रही हूँ। अच्छा, अनुष्का, फर्स्ट का कर लिया? क्या आ रहा है? -i√। क्या माइनस। बात, अरे कैसी बातें कर रही हो? फर्स्ट का मेरा तो 0 आ रहा है। आयोटा, आयोटा स्क्वायर कितना होता है? -1। आयोटा क्यूब कितना होता है? माइनस आयोटा। आयोटा 4 इज, बस लो कर लो बात। माय बैड। गॉट इट। याद है तुम्हारा कितना आ रहा था? सर 0। सर हाँ। यद्वी है, यादवी नहीं है। अच्छा, यद भी ठीक है। अब मैं प्रॉब्लम मेरे साथ ये है कि मेरे को नाम के प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आते, तो मैंने योशा को इसलिए पूछा था, योशा ये नाम है ना? यद भी, ऑल राइट। मनसीरत कर लिया? यस सर, 0 इज द ऑल आंसर। राइट, 0। अब इसका एक रिजल्ट लिख लो, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा। लिखो, whenever there are four terms of iota, whenever there are four terms of iota whose powers are whose powers are in AP, whose powers are in AP with common difference, with common difference other than multiple of 4, other than multiple of 4, then their sum will always be 0. Their sum, if there are four terms of iota having powers in AP which are whose common difference is not a multiple of 4, तो उनका सम हमेशा ही 0 आएगा। ठीक है, जैसे ये वाला था,
इसको हम बिना सॉल्व किए जीरो कर देंगे। अगर मान लो तुम्हारे पास होता आयोटा क्यूब, आयोटा 6, आयोटा 9, आयोटा 12। अब चार टर्म ऑफ आयोटा हुए, इनकी पावर में कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है? 3, विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका आंसर शून्य आएगा, करके देख लो तुम, इल बी जीरो। बट अगर ये मल्टीपल ऑफ 4 होगा तो आंसर विल नॉट बी जीरो, इल बी सम नॉन जीरो नंबर। तो ये रिजल्ट याद कर लो, ये अभी बाकी और आगे क्वेश्चन करो, उसमें काम आने वाला है। आयोटा की पावर, चार टर्म आयोटा की जिनकी पावर्स एपी में है और कॉमन डिफरेंस 4 का मल्टीपल नहीं है, तो उनका सम जीरो आएगा। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो सॉल्व करके देख लो इसको। आ रहा है? इट हैज टू बी। क्यों रिड्यूस करना है? तो रिजल्ट ऑलरेडी मालूम है। टाइम, ठीक है, टाइम थोड़ी वेस्ट करना, टाइम इज द की। सेकंड का क्या आंसर है? किसी ने किया? दिव्शा? Iota -1. आइटा -1। देखो, 201, 200 मल्टीपल ऑफ 4 हो गया, तो ये आयोटा हो गया, दिस इज आयोटा। इसको मैं रेड में लिखता हूँ, ये बन गया आयोटा, ठीक है। 6724 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है ये नहीं है, कैसे पता करते हैं? लास्ट टू डिजिट को 4 से डिवाइड कर लो। 72 4 से डिविजिबल है? तुम बताओ, है पक्का? कैलकुलेटर से करोगी? 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया? 1 हो गया। एंड व्हाट अबाउट दिस? ये 1004 का मल्टीपल है, ये आइटा स्क्वायर हो गया। ये तो मेरे से भी हो गया, इतना इजी था। आइटा -1। आइटा -1 है ना? माही, क्या है आंसर? अच्छा, सॉरी सॉरी, +1 भी तो था ना। आयोटा इज द आंसर, ठीक है। आयोटा -1 +1 भी था ना। यही आ रहा है वानी? वानी क्या हुआ? तुम्हारी वानी नहीं आ रही सुनाई मेरे को। नेक्स्ट बताओ, सी। सी में प्रिशा तुम क्या करोगी? A+B होल क्यूब यूज करोगी? अपनी अपनी नोटबुक में जो भी मैं आइडेंटिटीज लिखूंगा ना, उनको लिखते जाना। दीज आइडेंटिटीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, काम आएंगे। A+B होल क्यूब कितना होता है? A³ + B³ +3AB इंटू A+B। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट इसी आइडेंटिटी से तुम A+B होल क्यूब भी निकाल सकते हो। इसी आइडेंटिटी को रीअरेंज करके हम A³ + B³ भी फाइंड कर सकते हैं। देखो जरा कैसे। अगर हम इसको लेफ्ट में ले लें, A³ + B³ बाकी टर्म को राइट में उधर ले जाता हूं मैं, तो A+B होल क्यूब, ये टर्म माइनस हो जाएगी बस, ठीक है। मतलब इस टर्म को इधर लिख लिया, वही आ गया। तो दिस इज A³ + B³। इसको और भी लिख सकते हो, इफ यू टेक A+B कॉमन, तो क्या बन जाएगा ये? A+B का होल स्क्वायर -3AB। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, A+B का होल स्क्वायर कितना होता है देवे ना? A+B का होल स्क्वायर, ओके। तो दिस इज A² + B² -AB। तुम्हें इस फॉर्म में याद होगा ये। अब ये तीनों चारों आइडेंटिटीज लिख लो। एक और चीज, अगर यहाँ माइनस साइन होगा तो पहली टर्म को छोड़ के सारा माइनस हो जाता है। सो अपनी अपनी नोटबुक के एंड में 4 पेज छोड़ देना, वहां पे हम रिजल्ट्स और आइडेंटिटीज लिखेंगे। लिख लो। सी पार्ट का आंसर? 0. यस, सी पार्ट में 0. आई डोंट हैव टू यूज A³ + B³, वो तो मैं तुम्हें जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिया था। सी पार्ट में A+B होल क्यूब नहीं यूज होगा, बिकॉज क्या काव्या तुमने क्यूब यूज कर लिया? देखो आइटा 69 को क्या करोगे? 68 इज मल्टीपल ऑफ
4। तो ये हमारा दोस्त आयोटा हो गया, ये भी आयोटा हो गया। अब जरा देखो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तो आयोटा इज बेसिकली -1/आयोटा। 1/आयोटा को तुम माइनस आयोटा से रिप्लेस कर सकते हो, आयोटा को -1/आयोटा से रिप्लेस कर सकते हो। दैट मीन्स ये आयोटा, ये माइनस आयोटा, एंड आंसर इज 0। तब भी वही, हाँ तब भी आएगा। अगर होल क्यूब करोगे तब भी आएगा काव्य। कितना आ रहा है काव्य होल क्यूब करके? भाई 69 इज 68 इंटू आयोटा, 68 इज मल्टीपल ऑफ 4, हटा दिया उसको। 68 4 का मल्टीपल होता है। हाँ, आयटा बच गया। तो उसको आयटा लिख दिया, इसको 1/आयटा लिख दिया। और आयटा स्क्वायर -1 होता है, तो आयटा इज -1/आयटा। तो मैंने 1/आयटा को माइनस आयटा लिख दिया। तुम भी ना दिमाग घर पे रख के आती हो। समझाओ इसको हिंदी में। तो 1/आयटा को माइनस आयटा अगर ऐसे नहीं करे तो एलसीएम ले लो। और अगर बहुत टाइम है तुम्हारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए, तो उसका होल क्यूब कर लो, a + b होल क्यूब से। फिर भी 0 आएगा, कैसे भी करो, मैथ्स का ये फायदा है। एक और एक 11 नहीं होगा, मैथ्स में 2 ही आएगा। क्यों अनुष्का, सही बोल रहा हूँ? बरोबर समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ। आई एम मिसिंग मुंबई। पहले तो मैं कोविड के पहले एवरी ऑल्टरनेट वीक जाया करता पढ़ाने वहां पे। सो अब डी पार्ट पे आ जाओ। आयोटा। डी पार्ट क्या आ रहा है? आयोटा। क्या बात कर रही हो, ऐसा मत बोलो। आइडा आ रहा है? वही ना, मानती नहीं है लड़की। तो क्या आप मुझे बोल रहे हो मानती ही नहीं? हाँ। आप मुझे बोल रहे हो मानती ही नहीं है? चलो देखते हैं। तुम वैसे झूठ नहीं बोलती, सच ही बोलती है हमेशा। भाई तो ट्रैवल करती नहीं, बस महीने में 4 5 बार जाती है। आइडा एन है यहाँ पे और समेशन है। समेशन का मतलब होता है यू हैव टू ऐड, राइट? एन को 1 डाला, फिर ऐड किया, फिर एन को 2, फिर 3, फिर 4, और बाकी तुम घर पे करते रहना, ठीक है? मम्मी की ड्यूटी लगा देना, वो लिखती रहेंगी। ये आ गया। अब जो हमने रिजल्ट पहले किया था कि दैट इफ देयर 4 टर्म्स ऑफ आयोटा हैविंग पावर्स इन एपी, द सम इज 0, वो यूज करना है हमें। तो फर्स्ट 4 0 हो गया, नेक्स्ट 4 0 हो गया, लास्ट 4 भी 0 हो गया, सब 0 हो गए। क्या बचा? विच इज 16 इंटू आयोटा। 16 1 होता है। आ गया आंसर। क्या भाई योशा, पूछ लो, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो। नहीं सर, आ गया। नेक्स्ट बताओ, ई पार्ट। 4। एनीथिंग टू बाय जीरो। माही, क्या हुआ, कंफ्यूजन है कुछ? हाँ। तुम लोगों का एक ही स्कूल है, माही एंड? नहीं, सबका अलग अलग है ना। ई पार्ट का आंसर क्या है? दिस मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4, मल्टीपल ऑफ 4। हम 4। तो जब भी पावर, जो अगर 4 टर्म एपी में है उन, और उनका कॉमन डिफरेंस 4 का मल्टीपल है या 4 है, तो आंसर कैन बी 4 ऑल्सो, -4 ऑल्सो, 4 आयटा ऑल्सो। अरे बावली, 100, 104, 108 एपी नहीं, क्या है फिर ये? क्या है ये भी घर पे रख के आती है सारा दिमाग अपना। तो जब भी लिख लो, इसका रिजल्ट भी लिखो। whenever there are 4 terms of iota, whenever there are 4 terms of iota whose powers are in AP, whose powers are in AP, लिख लो फिर बोलोगे तुम, whose powers are in AP with
multiple of 4 with common difference, multiple of 4 with common difference, multiple of 4, then their sum would be either 4 minus 4, 4 iota or minus 4 iota. Their sum would be 4, हाँ, माइनस प्लस माइनस 4 आयोटा। वो तुम्हें सॉल्व करके ही पता लग पाएगा, वो तुम्हें सॉल्व करके ही पता लगेगा। एक क्वेश्चन और कर लो। वो सॉल्व करना ही पड़ेगा, मतलब जीरो नहीं आएगा और कुछ और नहीं आएगा, मतलब ऑप्शन में मान लो ऑप्शन 0 दे रखा है या 3 दे रखा है, हाँ फिर तो करना ही पड़ेगा, तुम्हारी किस्मत, यू हैव अ बैड डे। क्यों नहीं आया, कुछ भी आ सकता, हाँ। उसमें नॉट मल्टीपल ऑफ 4 था, तो जब नॉट मल्टीपल ऑफ 4 तो हमेशा 0 आएगा। इससे मल्टीपल ऑफ 4 है, तो ये तो +4 या -4 या 4 आएगा या -4 आएगा। ये करो, नेक्स्ट पार्ट एफ करो। आयोटा। -1 प्लस आएगा, फिर आयोटा। आएगा सिर्फ। और और क्या आ रहा है मनसीरत, क्या आ रहा है तुम्हारा? एफ पार्ट का आंसर बताओ, यदवी, अनुष्का। मैं अभी कर रही हूँ। करो आराम से। कौन सा, ये वाला? हाँ ये तो 4 आएगा, एफ का बताओ ना। आयोटा -1 आ रहा है। ओके, इस वाले को या तुम समेशन ओपन करके भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम कॉमन लेके भी कर सकते हैं। अगर मैंने आयोडाइन कॉमन ले लिया तो रिमेंबर समेशन में एन इज ए वेरिएबल, एन वेरी कर रहा है ना 1 से 21, 1 प्लस आयोडा तो कांस्टेंट है, तो उसको चुपके से बाहर निकाल लो, समेशन नाराज नहीं होगा। दिस यू ऑलरेडी नो कैसे करते हैं, है ना। आयोडा से आयोडा 4 0 हो गया, टिल 20 0 हो गया, तो क्या बचेगा, आयोडा 21। आयोटा 21 कैसे सॉल्व करोगे, 21 हो जाएगा, आयोटा बच जाएगा, आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा, हो गया। और लास्ट का तो मालूम है क्या आ रहा है, कौन सा, ये कॉमन ले लिया ना, आयोडाइन कॉमन ले लिया, आयोडाइन कॉमन ले लिया, इसमें एन नहीं आ रहा है, तो एन को समेशन जिस टर्म में एन नहीं आ रहा वो समेशन से बाहर आ सकता है। द अदर मेथड कुड बी दैट, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। कैसे, आयोटा एन और आयोटा n+1, अब उसको सॉल्व कर लेते हैं, इससे भी आंसर है वही आएगा। अगर इससे करोगे तब भी वही आंसर आएगा, 1 से 21, 1 से 21, सेम आंसर। इसमें पहली 21 टर्म्स 0 हो गई, 20 टर्म्स, लास्ट टर्म क्या बचेगी इसमें, आयोटा 22। इसमें पहली 20 टर्म्स 0 हो गई, लास्ट टर्म कौन सी बची, आयोटा 21। आंसर वही आएगा, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, ये हो जाएगा आयोटा, लो कर लो बात, वही आंसर है। लास्ट का तो सबको पता लग गया ना, 4 आयोटा है, राइट। तो दिस दिस वाज इमेजिनरी नंबर। अब हम आते हैं रियल कॉम्प्लेक्स नंबर पे, इसमें किसी को डाउट है? अब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिखो। उससे पहले एक बात बताओ मुझे, सपोज यू हैव ए सेट विच इज से a, b, एंड दिस सेट इज इक्वल टू अनदर सेट विच इज 1, 2। अब a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है? ये 1 है, a कितना है, 1। b इज टू, सिर्फ यही होगा आंसर, और it could be a is 2, b is 1, because a set is not ordered pair. Set में repetition of elements and their order is immaterial, लिख लो साइड में नोट करके, काम आएगा। In a set, repetition of elements
repetition of elements and their order is not important, is immaterial. हम a कॉमा b को b कॉमा a भी लिख सकते हैं, 1,2 को 2,1 भी लिख सकते हैं, एंड 1,2 को आई कैन राइट 1, 1, 2, 2, 2, 2, 1, कुछ भी लिख सकते हो, यू नो दैट. हाँ, लेकिन अगर ये होता लाइक दिस इज ऑर्डर्ड पेयर, तो दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर. इसमें हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते. हाँ. हाँ, एक ही अगर वन होगी बी की टू हो जाएगी, और अगर ए की टू है तो बी की वन हो जाएगी, मतलब वन वन नहीं हो सकती. हाँ. ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट विल बी इक्वल टू फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट विल बी इक्वल टू सेकंड एलिमेंट. दैट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर्ड पेयर. जैसे कि मान लो यू हैव x माइनस वन, वाई प्लस फाइव इज इक्वल टू 6, -7, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड x एंड y. तो क्या होगा वरुणी? x is equal to 5, x y इक्वल टू is कितना? equal to 5, क्या 6, sorry, 7, 7. हाँ, जल्दबाजी मत करो. तो दिस एलिमेंट इक्वल टू दिस एलिमेंट एंड दिस इक्वल टू दिस. So x minus 1 is equal to 6, y plus 5 is equal to -7. ये कॉम्प्लेक्स में काम आएगा ना अभी. ऑर्डर्ड पेयर कॉम्प्लेक्स के डेफिनेशन में काम आने वाला है. लिखो कॉम्प्लेक्स की डेफिनेशन लिखो. अ कॉम्प्लेक्स नंबर, a complex number is an ordered pair. A complex number is an ordered pair, is an ordered pair x comma y, x comma y, such that x and y both are real numbers, such that x and y both are real numbers, where x is said to be real part, where x is said to be real part and y is said to be imaginary part. It is represented by z. आगे लिख लो, a complex number is represented by z. देखो मैं इसको मैथमेटिकली लिख रहा हूं, जो मैं वर्ड में लिखा है ना, a complex number z is an ordered pair x comma y such that x and y both are real numbers. ठीक है. x is said to be real part of z. रियल पार्ट ऑफ z को ऐसे लिखा जाता है, ये रियल पार्ट है, एंड y is said to be imaginary part of z. A complex number z is an ordered pair x comma y. X and y both are real. X is said to be real part and y is said to be imaginary part. ये है. हाँ देखो, z को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x plus iota y. For example, z is 2 minus 3 iota. तो इसमें x कितना हो गया, रियल पार्ट कितना हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का? 2. इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया? -3. आयोटा नहीं आएगा. तो x रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट बोथ आर बेसिकली रियल. आयोटा नहीं आ रहा है, लेकिन जो आयोटा का कोएफिशिएंट है वो इमेजिनरी पार्ट है. एंड स्टैंडर्ड, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. दे आर इंटरचेंजेबल. इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इधर दिस और दिस. ठीक है. तो स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म में आयोटा के नॉट बी इन द डिनोमिनेटर, उसको हमें रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म इज दिस. This is standard Cartesian form of a complex number. मान लो z है
2 iota plus 3 divided by iota. Can you tell me what is the real part and imaginary part? बताना. Tell me, हाँ. Tell me the real part and imaginary part in both the questions. आराम से. Take your own time. आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, उसको हटाना पड़ेगा. Get rid of iota. हाँ, सर इमेजिनरी पार्ट -3 और रियल पार्ट 2। बिल्कुल सही जवाब. या तो रैशनलाइज कर लो या अलग अलग डिवाइड कर दो. क्या बात है. अब आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसमें. आयोटा स्क्वायर कितना होता था पहले? तो सही बोल रही हो ना तुम गलत बोलती कहाँ हो. रियल पार्ट इज 2, इमेजिनरी इज -3. हाँ. हाँ. अरे तब भी वो तो डिवाइड भी तो करोगी. हाँ तो फिर देखो ना, अगर तुम्हें वैसे करना है तब भी वही आंसर आएगा. 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड. अब आयोटा स्क्वायर तो -1 हो गया. दिस इज 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा, वही -1. आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आंसर तो वही आएगा. वही तो आया आंसर फिर भी. ये माइनस ऊपर ले लिया. वो है ना, गड़बड़ कर रही हो तुम. कोई बात नहीं, पहली क्लास है ना, बहुत साल बाद. पढ़ाई भूल गए हो तुम, पढ़ना भी होता है. काफी टाइम हो गया है तो भूल गई पढ़ती. नेक्स्ट पार्ट करो अब. जल्दबाजी मत करो भाई, आराम से बिल्कुल. एक्स्ट्रा टाइम लगा लो लेकिन आंसर सही आना मांगता है. अनुष्का बताना आंसर सेकंड का. सर हम सॉल्विंग करो जल्दी करो. ओके सेकंड करो, बैठ के से जाती हो. ये रहा सेकंड क्वेश्चन. कोई खोल ले, दोनों खोल लिया. हाँ. फर्स्ट ओपन. हम्म. राइट. इसको तुम चाहो तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज भी करना पड़ेगा. तो जाएगा 4 + 9. आयोटा स्क्वायर इज -1. 3 + 4 आयोटा, 2 - 3 आयोटा. In the denominator you can use a square minus b square, ना. आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा. ये आ रहा है 18/13. यस सर। ओके. इमेजिनरी पार्ट -1/13. थर्ड क्वेश्चन करो. थर्ड भी लिखा हुआ है. वहाँ ही हो रहा है, खुद से कर रही हो. तुम्हारा हो गया थर्ड. आर्यमन तुम कहाँ हो?
इधर ही हूँ सर। क्या आंसर है थर्ड का? कर रहा हूँ। सर -1। हाँ वो भी करेंगे बिकॉज वो एंट्रेंस में आ रहा है। उन लोगों ने सर कहा कि भाई -1 सिलेबस -1 रैशनलाइज कर दिया, बट ऑल दैट विच इज रिलेटेड इज बीन कमिंग इन एंट्रेंस। करेंगे हम लोग। कितना? रियल पार्ट -1। -1, इमेजिनरी 0। हाँ, तो रिमेंबर दैट 1 + आयोटा का होल स्क्वायर जो होता है वो बहुत सिंप्लीफाई हो जाता है। सिंप्लीफाई होके वो जिससे 1 आयोटा स्क्वायर + 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर -1 होता है तो 1 से -1 कट जाएगा। तो 1 + आयोटा का होल स्क्वायर इज ऑलवेज 2 आयोटा। काफी काम आएगा ये। सिमिलरली 1 - आयोटा का होल स्क्वायर होता है -2 आयोटा। और जब तुम इसको अब रिप्लेस करोगे, इट इज 2 आयोटा बाय -2 आयोटा, दैट इज -1। अब -1 रियल नंबर है या कॉम्प्लेक्स नंबर है? कॉम्प्लेक्स। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज रियल, बोल सकते हैं ऐसा, बट एवरी कॉम्प्लेक्स इज रियल। मैं एक स्टेटमेंट बोल रहा हूँ, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर एंड वाइस वर्सा। इज इट ट्रू और फॉल्स? नहीं, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। इज इट करेक्ट स्टेटमेंट और नॉट? Yes. यस, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद इमेजिनरी पार्ट 0। लिख लो, every real number is a complex number with its imaginary part equals to 0। जैसे कि नेचुरल नंबर जो है वो 1 से इंफिनिटी तक जाता है। नेचुरल नंबर का सुपरसेट क्या होगा? होल नंबर। होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर कंटेंट है। होल नंबर में क्या कंटेंट होगा? इंटीजर हो गया, उसको आई एस जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। आई ले लेते हैं यहाँ पे। इंटीजर किस में होंगे? रियल नंबर में होंगे। और रियल नंबर भी कॉम्प्लेक्स का सेट होगा, ये कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज सुपरसेट ऑफ ऑल। हाँ, -1। तो कॉम्प्लेक्स, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर बट नॉट वाइस वर्सा। तो अगर कोई रियल नंबर है, प्योर रियल नंबर जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो इट इज कॉल्ड प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है, that complex number is said to be purely real complex number। Similarly उल्टा भी हो सकता है। You have 0 + 2 आयोटा। Yes, so this is purely imaginary complex number। यहाँ तक की स्टोरी सबको समझ में आ गई? आगे बढ़े। So can काव्या। you explain purely imaginary complex number again? हाँ देखो, अगर सपोज किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में, नॉर्मली कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर होता है लाइक दिस, है ना? दिस इज कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। दिस इज इमेजिनरी पार्ट एंड दिस इज अ रियल पार्ट। मान लो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट 0 है, ठीक है? y क्या है? y इज बेसिकली इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर इमेजिनरी पार्ट 0 है, तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बन जाएगा? सिर्फ x हो जाएगा वो, बिकॉज ये वाला पार्ट तो 0 हो गया। सो दिस काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज सेड टू बी प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स Yeah. नंबर। सिमिलरली अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर अगर 0 हुआ, देन दैट कॉम्प्लेक्स नंबर वुड बी सिंपली iota टाइम्स y। so this would be purely imaginary complex number। Got it. ठीक है? और कुछ? आगे बढ़ते हैं। हाँ,
हम्म। हाँ हाँ हाँ, करेंगे दोबारा। उस टाइप के और क्वेश्चन भी आ चुके हैं अब तक तो। कोई बात नहीं, जो जो चीज पसंद नहीं आ रही उसको भी करना पड़ेगा मैथ्स में। अब इजी लगेगा तुम्हें। ना रियलाइज कि पहले में क्यों कम समझ में आ रहा था, अब तो ज्यादा आ रहा है। तुम लोग बड़े हो गए 1 साल, अब दिमाग बढ़ गया है अब। बड़ा है ना, ये तो खो जाती है। मॉडल लिखो, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सपोज वी हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर x plus iota y. So modulus of a complex number is represented like this: mod z or mod of x plus iota y. And this is root of x square plus y square. Or modulus of a complex number is always real part of x whole squared plus imaginary part of the z whole squared. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉडुलस होगा वो होगा रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। कहाँ पे? हाँ, ये जेड ही होगा। प्रिंटिंग एरर हो गया था। रियल पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड होल स्क्वायर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कभी भी ना तो नेगेटिव आएगा ना इमेजिनरी आएगा, इट बी प्योरली रियल नंबर एंड पॉजिटिव रियल नंबर। देखो, सपोज जेड है 3 - 4 आयोटा, तो इसका मॉड क्या हो जाएगा? इसका मॉड हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, दैट इज √25। √25 क्या होगा? √25 5 होगा, ±5 होगा? सिर्फ 5 होगा। यस, लेट्स क्लियर दिस कंफ्यूजन। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर आता है, ये लिख लेना, काम आएगा बहुत। √(x²) इज ऑलवेज मॉड ऑफ x, ±5 नहीं होगा। उसका रीजन पता है क्या होता है? मान लो x² = 25 है, तो जब तुम इसका रूट लेते हो ना, तो दो आंसर आते हैं, ±√25, दो आंसर आ गए। एक आंसर हो गया प्लस वाला √25 विच इज 5 ओनली। दूसरा हो जाएगा -√25, तो √25 तो 5 ही है, माइनस साइन पहले से था वहां पे। सो इट इज ऑलवेज लाइक दिस। √(x² इज ऑलवेज, हाँ, तो जब स्क्वायर रूट ले रहे हो तब आ रहा है ना। मतलब ये ±5 नहीं है, इसकी वैल्यू ±5 नहीं है, ये ±5 है। और ऐसे क्यों है? बिकॉज व्हेन यू फैक्टराइज दिस, दो फैक्टर्स बनेंगे, x - 5, x + 5, दैट्स वाई 2 आंसर्स। मान लो यू हैव ए कॉम्प्लेक्स नंबर विच इज z = -3 -4 आइटा, तो उसका मॉड कितना होगा? 5 ही होगा। सेम आएगा, ठीक है। जो ये था मॉड, उसी का मॉड ही सेम आएगा, बिकॉज व्हेन यू स्क्वायर द नंबर्स इवन दो दे आर नेगेटिव, कहने का मतलब ये हुआ कि मॉडुलस में आइटा का स्क्वायर मत कर लेना। मॉडुलस में बिना आइटा के रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होगा। There are few more properties of mod, like if we have two complex numbers z1 into z2 whole modulus, it will be mod of z1 into mod of z2. Extremely important result. अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करें, उनका मॉडुलस निकालें, इट इज एज गुड एज फाइंडिंग देयर मॉडुलस एंड मल्टीप्लाइंग। This will hold true for three complex numbers also. This will hold true for n complex numbers also.
हाँ। हम्म। मान लो हमारे पास एक वैल्यू है 5 + 12 आयोटा टू द पावर 3 होल मॉडुलस। उसको सॉल्व कैसे करोगे? 5 + 12 आयोटा होल क्यूब मॉडुलस। ये को मॉड्यूलस के बाहर ले। हाँ, तो यहाँ हम ये नहीं कि a + b होल क्यूब पहले करके सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दो रियल दो इमेजिनरी फिर उसको का मॉड ले रहे हैं, वो नहीं करना है हमें। यहाँ हम डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर सकते हैं, वो मैं डिराइव कर रहा हूँ इसी से। मान लो z और z1 z2 दोनों z होते, तो क्या रिजल्ट आता हमारा इससे? ये रिजल्ट बन जाता मॉड ऑफ z² इक्वल टू मॉड z होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट रिजल्ट। यहाँ पे अगर मैं z तीनों को z ले लेता तो ये जाएगा मॉड z मॉड z मॉड z। कितना हो गया? मॉड z³ इज इक्वल टू मॉड z का होल क्यूब। यहाँ पे अगर सारे z होते तो क्या रिजल्ट बन जाता? कहने का मतलब z की जो पावर है, अगर वो होल नंबर है, वो बाहर आ जाएगी। तो यहाँ पे तुम्हें ये वाला रिजल्ट यूज करना है। n कैनॉट बी फ्रैक्शन, n इज ए होल नंबर ओवर देयर। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? मॉड के बाहर निकाल लो पावर को। बस। ये तुम्हें मालूम है कितना होता है? 1 से लेके 30 तक सबके तुम्हें स्क्वायर पता होने चाहिए। 19 स्क्वायर कितना होता है? 361। 25 स्क्वायर तो सबको मालूम। 26 स्क्वायर 625। अरे बच्चे बच्चे को गले के धोबी को मालूम होता है, तो वैसी बातें कर रही हो। 24 स्क्वायर कितना है योशा? 24 स्क्वायर So I don't know. याद कर लो, ये सारे काम आएंगे वरना टाइम लगता है फिर। 576। ठीक है। काव्य को तो 30 तक याद है सारे। 30 का पता है इसको? 900। तो 144 होल क्यूब हो गया। 13 का क्यूब, 13 का क्यूब कितना? कितना? 2196। टू, अच्छा अच्छा। हाँ। नहीं नहीं, उस क्यूब नहीं, उसने कर लिया था कैलकुलेटर से। 2137। 213797। 92197. 97। 97. देखो कैलकुलेटर से 97 आ रहा है कैलकुलेटर से। एनीवेज, मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको याद कर लो बॉक्स में जो मैंने डाला है। सेकेंड रिजल्ट इज mod z1 by z2 is mod of z1 by mod of z2। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं, उनके पूरे का मॉडुलस ले रहे हो, so this is basically equal to mod of z1 by mod of z2 individual। जैसे कि सपोज वी हैव 3 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 3 - 4 आयोटा, तो दिस वुड बी mod of 3 + 2 आयोटा बाय 3 - 4 आयोटा। ये नहीं कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम पहले इसको रैशनलाइज कर रहे हैं मॉडुलस के अंदर, फिर उसका मॉडुलस ले रहे हैं, वो नहीं करना है। दिस वुड बी 9 + 4, दिस वुड बी 9 + 16 √13/5। ठीक है। सपोज वी हैव 2 + 3 आयोटा इंटू 3 - 4 आयोटा इंटू -5 - 12 आयोटा होल मॉडुलस is equal to 1 over x plus iota y। Tell me what is x and y?
फाइंड एक्स एंड वाई। क्या? इसमें तुम एक्स एंड वाई निकाल नहीं पाओगे। रिलेशन आ रहा है उनके। रिलेशन आ जाएगा, है ना, बिकॉज ओनली वन इक्वेशन है इज देयर। हाँ राइट, यू कांट, मतलब इंडिविजुअली एक्स एंड वाई नहीं आएगा इसमें। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। इसका मॉड हो गया, कितना हो गया, 13। इसका मॉड हो गया 5, हो जाएगा 25 लिख देता हूँ फिलहाल, तो दिस इज 169। एंड इसका मॉड कितना हो गया, तो इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई स्क्वायर बोथ द साइड्स, तो रिलेशन आ जाएगा, यू कांट फाइंड द वैल्यू। 13, 25, 169, है ना, ये आएगा स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने पे। करना। अभी भी है, पेज 75। और आ क्या गया। किया हुआ ये सारा। अच्छा, ठीक है। बिना मॉड के कैसे करोगी? अगर देखो टाइम पास करना है तो रैशनलाइज कर लो, फिर कंपेयर करो लेफ्ट साइड राइट साइड में, रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, आधा घंटा उसमें निकल जाएगा, उतना टाइम हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे, चुपके से दोनों साइड का मॉड ले लेंगे। दोनों साइड का मॉड ले लो, वन इज आंसर। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कट के वन आ गया। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर दो, हो गया। तो नाम इसका बेकार में कॉम्प्लेक्स रखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नहीं है ये, इसका नाम होना चाहिए सिंपल नंबर्स, नहीं? क्यों माही, से बोल रहा हूँ। एक बार रिवाइज करो जो आज किया हमने, कोई डाउट है तो पूछो। पहली क्लास में ज्यादा ज्यादा पढ़ना अच्छा नहीं है। कौन सा एगलरेट है, एफ एक्स, अच्छा। कहाँ जाना है अभी, अभी तो टाइम है। अभी रिवाइज करने के लिए बोल रहा हूँ, जस्ट रिवाइज इट, क्या क्या किया अभी तक। अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे ना, फिर एक बार कुछ डाउट है तो अभी देख लो। गो जस्ट गो थ्रू वॉट एवर वी हैव डन। जिसको भी कहीं घूमने जाना है ना, दिल बी 15 days हॉलीडेज इन जून। एंड में, हाँ, 15 जून टू 30th जून, ठीक है। 15 जून से 30 जून तक छुट्टी है तुम्हारी, तो कहीं भी जाना है। हाँ, इस बार ज्यादा कर दी क्योंकि वो काफी कंप्लेन थी पेरेंट्स की बच्चों की। है, मैं तो गोवा ही जाता हूँ बस। हाँ, और एक ही जगह रखता हूँ, बागा बीच।
हाँ, वो क्राउडेड ही पसंद आता है मेरे को। सर हाँ, सर जो जैसे अगर रूट 25 है तो आप एक बार वो समझा दोगे कि हम सिर्फ पॉजिटिव के लेते नेगेटिव वाले के नहीं लेते। नहीं तो एंट्रेंस में तो हमें तो डायरेक्टली करना होगा ना, हमें तो टाइम सेव करना है। अब तुम स्कूल 11 का तो एग्जाम दे नहीं रहोगे, पूरा प्रॉपरली लिख के आना है। तो आइडिया इज टू डू इट फास्ट, तो उसको डायरेक्टली लिख सकते हो। और कुछ? वरुणी, क्या हुआ, टाइम देख रही हो तुम? ठीक है, आगे बढ़े फिर। नेक्स्ट आगे करते हैं फिर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखो। हाँ, झोला झोला बंद नहीं करना, लिखो। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। माही, पढ़ लो, लिख लो। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सो कॉम्प्लेक्स लिखो। कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर z। conjugate of a complex number z is obtained by changing the sign of its imaginary part. Conjugate of a complex number is obtained by changing the sign of its imaginary part. मान लो z है हमारा x प्लस आयोटा y, तो कॉन्जुगेट को कैसे लिखोगे? z बार x प्लस आयोटा y होल बार। तो z बार इज x माइनस आयोटा y। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन को चेंज करना है। मान लो कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 आयोटा-2, तो उसका z बार कितना होगा? मुझे मालूम था, जल्दबाजी में बोलोगे 3 आयोटा+2। इमेजिनरी पार्ट का चेंज करना है। ये मम्मी की याद आ रही है ना तुम्हें? क्लास का टाइम हो गया है। तो माइनस इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। बाकी कहानी नेक्स्ट क्लास, ठीक है? जो भी मैंने आज किया उसको रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्लास में कॉन्जुगेट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? एंडिंग द क्लास, सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू सर, बाय बाय सर। बाय। थैंक यू सर। तुम तो आज रास्ता ही, ये तो रास्ता भूल गई थी आज।